معرکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل، فتح کا شایان شان جشن۔ لاہور میں پنجاب حکومت کے تحت 3 روزہ تقریبات، لبرٹی چوک میں عزم عالی شان کانسرٹ، شہریوں کا جوش و خروش، پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ ایک بار شور ہونا چاہیے لاہور، ایک بار شور ہونا چاہیے لاہور۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ہم دشمن کا غرور خاک میں ملاتے رہیں گے۔ لبرٹی لاہور میں معرکہ حق کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج نے ملک کی دفاع اور وقار کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاکستان کی قوم کو جو سیسا پلائی دیوار کی طرح بنیاد المرصوص بن کر جس نے معرکہ حق لڑا اور دشمن کو اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو لاہوریوں آپ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک بزدل دشمن کی للکار کو، اس کے غرور کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ بات کریں گے حکومت کا وہاں پر ایک اور معاشی وار، پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 414 روپے 78 پیسے تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 414 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے۔ ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ظہیر بتائیے گا کتنا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، پاکستان میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کا جو پیٹرولیم یہ سیکٹر ہے، اس کو حکومت نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات جب انٹرنیشنلی بڑی تھی تو فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، لیکن اب 2 ہفتے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر کمی حکومت نہیں کر سکتی تو کم از کم جو ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے اضافہ کیا گیا، اور جو اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے 14 روپے 92 پیسے، تقریباً 15 روپے اس پروڈکٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس کو حکومت اضافہ کم از کم پاس آن نہیں کر سکتی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں یہ سپلائی چین ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر، منڈی سے جو چیزیں شفٹ ہوں گی اس کے کرائے بڑھیں گے، ریلویز کے کرائے بڑھیں گے، ٹرانسپورٹیشن جو چارجز ہیں وہ بڑھیں گے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے۔ تو مہنگائی جو پہلے ہی بڑھ چکی ہے اس وقت افورڈیبل نہیں ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی افورڈیبل نہیں تھی، اور اب اور مشکل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈیزل کی قیمت ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے، اس کو 399 روپے 58 پیسے۔ ظہیر ہمارے ساتھ موجود رہے گا بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، یہ ماجرا کیا ہے، ذرا سمجھائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ عالمی سطح پر قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں، کتنا مزید بوجھ ڈالنا ہے حکومت نے عوام پر؟ بالکل، دیکھیں عوام کو جو آسان ہدف بنا لیا گیا ہے، کیونکہ پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ وفاقی ٹیکس ہے، نان ٹیکس ریونیوز کو کہتے ہیں، صوبوں کو شیئر نہیں دینا پڑتا۔ چونکہ ایف ڈی آر اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہا، 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا پہلے 10 ماہ میں، اور 73 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا صرف اپریل کے مہینے میں، وہاں سے شارٹ فال ہے، وہاں ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہاں عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کر کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 450 تقریباً 400 روپے سے زیادہ جو قیمت ہو گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، اس سے جو 2 ویلرز ہیں، 3 ویلرز ہیں، رکشہ ڈرائیورز، اس کے علاوہ چھوٹی گاڑیوں والے، یہ تمام طبقہ متاثر ہوگا، کیونکہ اب مہنگی چیزیں ہوں گی، اور اس کے اثرات پیٹرولیم پرائسز کے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کرایوں پہ بھی پڑیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ پچھلے 2 سال کی تقریباً بلند ترین سطح پر ہے، 21-22 ماہ کی، اب 11% تک چلا گیا ہے، ڈبل ڈیجٹ میں۔ تو ابھی جو اضافہ ہوا ہے اس سے مزید اس کا امپیکٹ آئے گا، مزید اشیاء خوراک جو ہے مہنگی ہوں گی، اور عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ سبسڈی حکومت نے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب یہ قیمتیں بڑھا کے اپنے ریونیو اہداف پورے کیے جا رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں
$100 फी बैरल पे कीमत आ गई है। इससे पहले $113 फी बैरल पे भी गई थी, लेकिन अब कीमतें इंटरनेशनली कम हो रही हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए था आवाम को रिलीफ देते, लेकिन हुकूमत ने इजाफी बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। इजाफी बोझ डाला है, यानी कि आपका भी ये कहना है कि आवाम को आसान हदफ बना लिया हुकूमत ने। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद असफर एहसन, हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर बरए सरमायाकारी। असफर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, लेकिन आवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये, और आवाम अब ऐसे में क्या करे? अभी जैसे कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे शकील अहमद साहब यही कह रहे हैं कि आवाम आसान हदफ बन चुकी है हुकूमत का, तो हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, जवाब आवाम की जेबों पे डाका डालो। आवाम को चाहिए कि वो सो जाए बेसिकली, बिकॉज के ये 623 अरब का खसारा है और ये टारगेट पूरा नहीं हुआ एफबीआर का। ये इनकी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है एफबीआर की, और अब वो आवाम की उससे अब नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मुसलसल अब आवाम का एक खून निचोड़ना है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो कहीं पे इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुसलसल चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं। जो टैक्सेशन का सिलसिला है वहाँ पे भी वही है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो बिजनेस क्लास है, आप उन्हीं को फर्दर जो है वो उसकी मतलब उसको आप परेशान कर रहे हैं। एक हैरेसमेंट का एक एनवायरनमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो स्टेप्स हैं ये अच्छे स्टेप्स नहीं है, और हमेशा हम बात करते हैं डॉकिज्म की, फायर फाइटिंग की। जब तक उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जब तक अपनी इनकम आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके खर्चे कट डाउन नहीं होंगे, जब तक आप ये एसओबीज की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक एलीट कैप्चर जो इस मुल्क में है वो एंजॉय करेगा, वो स्टेटस को मेंटेन करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने माशाल्लाह इस वक्त जितनी अच्छी परफॉर्मेंस डिप्लोमेसी में और डिफेंस में दी है, उसके बाद ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को अवेल हुई है कि बिल्कुल असफर साहब, यही बात है कि देखिए आवाम भी इस वक्त हुकूमत के साथ थी, हुकूमत के शाना बेशाना थी और हुकूमत का भरपूर साथ दे रही थी और दे रही है अभी भी, कि आवाम खुश थी और आवाम ने महंगाई के बावजूद हर तरह का बोझ उठाया। अभी आपने कहा कि एफबीआर का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये उसका बोझ है। ज़रा हमारे देखने वालों को और एक हमारी जो नाजरीन है समा के, उनको बताइएगा कि ये आईएमएफ का प्रेशर था या एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कहीं का जो है वो मसला वो कहीं से निकाला जा रहा है, उस चीज़ की सज़ा एफबीआर की नाअहली की सज़ा आप ये कहने की दी जा रही है आवाम को? देखिए, हम तो हमेशा सुनते हैं कि एफबीआर का आपका ये आईएमएफ का प्रेशर था। आईएमएफ के प्रेशर पे आप कितनी वो करेंगी? बात यह है ना कि जब तक आईएमएफ का बेशक प्रेशर होगा, लेकिन जब तक आप अपनी इनकम जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप फाउंडेशन सेट नहीं करेंगे, तो ये आईएमएफ भी चलता रहेगा। आईएमएफ आपका सोल्यूशन नहीं है बेसिकली, कि आप जो है वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी ले रहे हैं, आईएमएफ से आप पैसे ले लेते हैं। $1.2 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये कि जब तक आप इस शिकंजे से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप फायर फाइटिंग और एडहॉकिज्म के माइंडसेट को खत्म नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, अपने घर को सही नहीं करेंगे, ये तमाशा चलता रहेगा। एक आम आदमी सफर करेगा और जो एक एलीट इस मुल्क में है जो एंजॉय करेगी और इसका स्टेटस को मेंटेन रखेगा। बिल्कुल सही। साथ मौजूद रहेगा शकील, आपकी जाने बातें बताइएगा मुझे कि ये एफबीआर वाला जो मामला है, एफबीआर अपने अगर रिकवरी सही नहीं कर पा रहा, महसूलात अपनी मुकम्मल नहीं कर पा रहा, टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या रीज़न है और क्या उसका बोझ आवाम उठाएगी? ये भी कह दीजिएगा कि आईएमएफ ने जो आज अगली किस्त दी है उसमें कुछ सख्त शराइत रखी थी, तो क्या ये उन शराइत की वजह से फौरन इजाफा किया गया है या वो एफबीआर ने अपने टारगेट पूरे नहीं किए उसकी वजह से ये इजाफा हुआ है? देखिए, दोनों वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि एफबीआर जो है अपने अहदाफ पूरे कर नहीं पा रहा। अफसरान को तकरीबन 1000 नई गाड़ियां खरीद के दी गई थी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, टैक्स नेट में इजाफा होगा, और साथ साथ भारी मराद दी जा रही है अफसरान को, 4-4, 5-5 सैलरीज दी जाती हैं उनको बोनस के तौर पर। लेकिन एफबीआर अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा और उसका खुमियाजा आम आदमी भुगत रहा है, क्योंकि आईएमएफ से ये कमिटमेंट की गई थी कि 160 रुपये फी लीटर लेवी जो वसूल की जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो अब 100 रुपये फी लीटर से ज्यादा लेवी हो चुकी है और ग्रेजुअली मजीद ये ऊपर जाएगी। और अभी भी गुंजाइश है हुकूमत के अपने कागजों में कि आवाम से इजाफी बोझ वसूल करना है, तो सारा जो बोझ है वो आवाम पे आ रहा है। हुकूमत जो है वो एफबीआर को इस बात पे जो है वो मजबूर नहीं कर पा रही कि आप अपने टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाएं ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, तो उधर से जो कमी हो रही है वो आवाम पे मुंतकिल की जा रही है। आप देखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं वो एक बार फिर कशीदा नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं फ्लक्चुएट जरूर कर रही हैं, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते वो प्राइसेस $100 फी बैरल के आसपास हैं।
लेकिन पिछले हफ्ते आप देखें तो ये इससे कहीं ऊपर थी, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने इजाफा कर दिया ताकि अपने जो रेवेन्यू हैं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वो बढ़ाए जाएं और अपना खसारा पूरा किया जाए। अब IMF ने 1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी है और उसके अंदर देखें कि अब नई शराइत हुकूमत ने मानी है IMF की बहुत सारी। एक तो ये है कि माली डिसिप्लिन लाना है, आपने अखराजात महदूद करने हैं, डेवलपमेंट बजट जो है उसको महदूद करना है, और लेकिन साथ साथ आपने जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ाने हैं। तो रेवेन्यू बढ़ाने का जो वाहिद जरिया नजर आ रहा है फिलहाल वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में बोझ डाला जा रहा है। यही वजह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही हैं। हुकूमत ने ठीक है सब्सिडी का ऐलान किया था, कुछ लोगों को सब्सिडी मिली भी, लेकिन उस सब्सिडी का फायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, पास ऑन की जा रही हैं डायरेक्टली, इससे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली पर जो है वो मजीद बोझ भी पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ, हर घंटे के साथ, बल्कि हर मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ महंगाई में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो मुतलका और दीगर इदारों की नाहली का बोझ आवाम पर डाल रही है। शकील अहमद आपका बहुत शुक्रिया, ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, मोहम्मद असफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। IMF की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी, हुकूमत ने नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी, तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का भी वादा, गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की भी यकीन दहानी करवाई। नई किस्त के जरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। माशी महाज से बड़ी खबर, आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के 1 अरब डॉलर और मौसमियाती तब्दीली के प्रोग्राम के 20 करोड़ डॉलर से जायद शामिल हैं। किस्त वसूली के साथ ही पाकिस्तान को मजमूई जारी करदा रकम 4.5 अरब डॉलर हो जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च 2026 को हुआ था। अवाम महंगाई के मजीद झटकों के लिए भी तैयार हो जाएं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF की मुतअद्दिद नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट, कर्ज प्रोग्राम के तहत माशी इस्तेहकाम जारी रखने, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, अखराजात पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने FBR में टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर तशवीश का इजहार किया है। 10 माह में FBR को 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। हुकूमत का इलाकाई हंगामी सूरत हाल के बावजूद IMF अहदाफ पर कायम रहने के अज़्म का इजहार। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के साथ शोबा तवानाई में इस्लाहात जारी रखी जाएंगी, जबकि हुकूमत गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हम दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाते रहेंगे। लिबर्टी लाहौर में मार्किया की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज ने दिफा और वकार नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान की कौम को जो सीसा पिलाई दीवार की तरह बुनियादुल मरसूस बनकर जिसने मार्का हक लड़ा और दुश्मन को उसके गरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया, तो लाहौरियों आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपने हुर्मस की बात करते हैं। आपने हुर्मस पर फिर कशीदगी का मरकज़। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर झड़पें। ईरानी टैंकर पर अमेरिकी नेवी के हमले के बाद दोनों जानिब से मिसाइल और रॉकेट बरसाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी टैंकर के हमले के 10 अरकान जख्मी और 5 लापता हुए। अमेरिकी फ़ौज ने बंदर अब्बास और कश्मीर की बंदरगाहों पर बमबारी की। ईरानी फ़ौज ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल दागे। सूरत हाल मामूल आने के बाद फिर अमेरिकी और ईरानी फोर्सेज आमने सामने आ गए। अमेरिकी फ़ौज ने खलीज ओमान में मजीद 2 जहाज़ों को ब्लॉकेट तोड़ने पर रोक लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में USS जॉर्ज W बुश और इब्राहिम लिंकन शामिल हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने झड़पों की तस्दीक कर दी।
ایرانی وزیر خارجہ کی اپنے ہرمز میں امریکی کارروائی کی شدید مذمت۔ عباس اراغچی نے کہا جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ضروری فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ ایرانی عوام دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہمارے میزائلوں کا ذخیرہ 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% زیادہ ہے۔ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی تجاویز پر جواب ابھی زیر غور ہے۔ امریکی پلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی فورسز مکمل الرٹ اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ ایران کی طرف سے جواب ملنے کے لیے پر امید، کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کے لیے تہران کے جواب کا انتظار ہے جو آج مل جانا چاہیے۔ امید ہے ایران سنجیدہ بات چیت کی طرف جائے گا۔ We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah. عرض پاکستان سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخوارج کے خلاف 2 آپریشنز، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ٹانک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 4 اور DI خان میں 1 خارجی مارا گیا۔ آپریشنز کے دوران مختلف قسم کے ہتھیار، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔